अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. وقال الله تبارك وتعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمدللہ رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے. آئندہ جمعہ پوری ہونے پر جو رات آئے گی وہ شعبان کی 15ویں رات شمار ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے، یعنی رجب المرجب کی پہلی تاریخ ہوتی تھی، تو یہ دعا مانگتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں میری زندگی میں برکت دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے. اس دعا سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تک زندگی کی دعا 2 مہینے پہلے سے کرتے تھے. رمضان کریم بڑا مبارک مہینہ، آقا 2 مہینے پہلے سے تیاری میں لگ جاتے تھے. رجب کا پورا مہینہ تیاری کرتے تھے، شعبان کا پورا مہینہ تیاری کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے. جیسے ہمارے گھروں میں انسان شعبان کے مہینے سے تیاری کرتا ہے، خاص طور پر صبحات کے بعد ہر انسان کے گھر میں تیاری ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کرے. ہر مومن اور مسلمان جو آقا سے محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، یہ جذبہ جو رمضان کی تیاری کا پیدا ہوتا ہے، یہ پیغمبر کی دعا کا معجزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ نبی جب 2 مہینے پہلے تیاری کرتے تھے تو آقا کی محبت جس امتی کے دل میں جس معیار کی ہوگی، اتنی ہی جلدی اس کی تیاری میں مصروف ہو جائے گا. علماء حفاظ، علماء کرام تفاسیر کے باب میں، حفاظ قرآن مسجدوں کے محرابوں کے اندر قرآن سنانے کے بعد میں گھروں میں رمضان المبارک کے روزوں میں وہ چیز جو رکاوٹ پیدا کرتی ہے اس کو نکال دے. قرآن کی تلاوت کے لیے، روزوں کے اہتمام کے لیے انسان
फारिग हो जाता है, इसको तैयारी कहते हैं। ठीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना, रमजान अल्लाह का महीना। साल के तमाम गिनती के दिन और साल के तमाम महीने ये सब अल्लाह ही के हैं। दिन भी अल्लाह के, रातें भी अल्लाह की, तमाम तर मखलूकात का खालिक और मालिक अल्लाह। लेकिन पैगंबर ने फिर यूं क्यों फरमाया, शाबान शहरी और रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। मालूम ये हुआ आका की तैयारी जो शाबान के बाबत थी, पूरे पूरे शाबान के रोजे रखते थे। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैंने लगातार साल भर में अल्लाह के नबी को बिला नागा 2 महीने के कभी रोजे रखते हुए नहीं देखा। बिला नागा साल भर में 2 महीने के लगातार रोजे रखते हुए कभी नहीं देखा। अलबत्ता मैंने शाबान और रमजान के पूरे 2 महीने के रोजे रखते हुए देखा। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मे सलमा ने कि आप रमजान के अलावा शाबान भर के रोजे रखते हैं, हालांकि फर्ज रोजा तो रमजान का है, फिर शाबान के पूरे महीने के रोजे क्यों रखते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ज़ाका शहरुन यग़फ़ुलुन्नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान। रमजान में लोग गफलत नहीं करते, रजब में लोग गफलत नहीं करते, अलबत्ता लोग शाबान के महीने में गफलत बरतते हैं। आका ने फरमाया, ज़ालिका शहरुन, शाबान का महीना वो है, यग़फ़ुलुन्नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान, रजब और रमजान के महीने के मुकाबले में इस महीने में गफलत होती है। इस वजह से गफलत के खात्मे के लिए मैं शाबान भर रोजे रखकर रमजान के रोजे की तैयारी करता हूं। हालांकि आप इमामुल अंबिया हैं, हालांकि आप खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, हालांकि आप अल्लाह के बाद कुल कायनात में सबसे बुजुर्ग, बाला और बरतर है। ये अल्लाह के महीने का एहतराम नबी के दिल में इस कदर ज्यादा था, लिहाजा हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि रमजान का महीना गोया के आ ही गया, शाबान का चांद तुलू होते ही हम उसकी तैयारी में मसरूफ हो जाएं। कोशिश कर लें सारी सीजनें एक तरफ, अल्लाह की सीजन आ गई, अल्लाह का महीना, ये नेकियों के कमाने की सीजन आ गई। 11 महीने अपने अपने हलाल और तय्यब कारोबार में, लेकिन एक महीना फारिग करके अल्लाह को इबादत के लिए सुपुर्द कर देना है, यानी अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग कर देना है। ये तो दोनों रिवायतों का मतलब हुआ। मैंने कुरान करीम की सूरह नमल की अलग अलग आयात के टुकड़े पढ़े हैं मौजूदा हालात के तनाजुर में। एक तरफ रूस, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। कोई बईद नहीं कि यह लड़ाई आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर ले। ध्यान तवज्जो से सुनना, यह आयत जो मैंने कुरान से मुंतखब की है, इसी पर चंद बातें जिक्र करनी है। एक तरफ रसिया और यूक्रेन, ये यूरोप का एक बड़ा मुल्क है, और रसिया यानी रूस, इसको तो हर एक इंसान जानता है। तो रसिया और यूक्रेन में इंतहाई खतरनाक खाना जंगी हो रही है, बमों की बारिश हो रही है, और मुद्दत दराज तक इस जंग के इन मकामात की तबाही को नस्लें दर नस्लें उसका खुमियाजा भुगतेगी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन यह भी हो सकता है कि रसिया और यूक्रेन की जंग कोई आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर ले। तो रसिया और यूक्रेन की यह जंग, इससे पहले जमाने में जंगें हुई, और जब जंगें होती हैं एक कौम फातेह बन करके जागिर होती है और दूसरी कौम मफ्तूह होती है। एक कौम का गलबा होता है, और दूसरी कौम मगलूब होती है। एक कौम जीतती है
اور دوسری قوم ہارتی ہے. ایک ملک کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور دوسرا ملک اور اس کی پبلک رعیت انتہائی خطرناک 20-20 سال تک پیدا ہونے والی نسلیں اپاہج اور معذور پیدا ہوتی ہے. قرآنی ہدایت کیا ہے؟ مختصر تاریخ ذکر کر کے اسلامی ہدایات سے میں آپ کو مطلع کروں. قرآن کریم فرماتا ہے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک کی نسل انسانی کی ہدایت کے لیے رزق ہدایت کا عظیم پیکر قرآن کریم کی صورت میں کتاب حکیم بنا کر کے نازل فرمایا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سبع معارب، یہ شہر کا نام ہے یمن کا. یمن کا شہر سبع معارب ہے. اس کا دارالسلطنت صنعاء یمن ہے، یعنی راجدھانی صنعاء ہے، اور اس شہر کا نام سبع معارب ہے. اللہ اس کا حال قرآن میں بیان فرماتا ہے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ. قوم سبا جس مسکن میں رہنے کی جگہ میں رہ رہی ہے، اس میں اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. جنتان عن یمین و شمال، دو طرفہ باغات ہیں دائیں بائیں. 12 مہینے پھل آتے ہیں، 12 ماسی پھل. آسمان کے پانی سے سیرابی ہوتی ہے. اور اس قوم کے پاس ایک ڈیم تھا جس میں بارش کا پانی محفوظ ہوتا تھا، اور بارش کے پانی سے سال بھر کھیتیوں کی پیداوار ہوتی تھی. یہ تو سبع معارف کا تعارف ہوا. یہاں تقریباً 40 بیٹوں کا باپ جو گزرا ہے وہ ہدہد ہے. ہدہد اس کے 40 بیٹے تھے اور 40 کے 40 بیٹے بادشاہ ہوئے. ہدہد نام کا ایک انسان گزرا ہے جس کا بیان قرآن سبع معارف کے ساتھ کرتا ہے. اس کے اولاد میں 40 لڑکے تھے اور 40 کے 40 بادشاہ ہوئے ہیں. ان کا ایک بیٹا شراحیل تھا، وہ بھی بہت بڑا بادشاہ تھا جس نے بہت بڑی سلطنت اور حکومت حاصل کی تھی. اس کو غرور اور تکبر پیدا ہو چکا تھا اور انسانوں میں سے کسی عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا تھا. 2 چیزیں ہیں جس سے انسان میں گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، ایک اقتدار کا گھمنڈ، ایک مال دولت کا گھمنڈ. اسی طرح علم کا بھی گھمنڈ ہوتا ہے جو ابلیس کو ہو گیا تھا. اب اس کو گھمنڈ پیدا ہوا. وہ یوں کہا کرتا تھا کہ انسانوں میں میرا کوئی کفو نہیں ہے، میرا کوئی ہم جنس نہیں ہے، میرا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو لوگوں نے بھی اس کو اس کے تکبر پر چھوڑ دیا. نتیجتاً کسی انسان عورت سے اس نے نکاح نہیں کیا. بلعامہ جنیہ کی بیٹی بلقیس سے اس نے نکاح کیا. بلقیس نام کی ایک عورت تھی، اس کے ماں کا نام بلعامہ بنت شیطان تھا. تو بلقیس بنت بلعامہ ابن شیطان، اس سے اس کا نکاح ہو گیا. اس کا باپ انسان تھا، ہدہد کا بیٹا شراحیل. ہدہد کا بیٹا شراحیل یہ بلقیس کا باپ ہے. اس نے نکاح کیا ایک جنیہ عورت کی بیٹی بلقیس سے. اب آپ یہ سمجھیں گے، سوچیں گے کہ کیا جنات سے نکاح ہوتا ہے؟ علماء کے 2 گروپ ہیں. ایک فقہا کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جن سے نکاح کرنا عورت سے جائز ہے. علماء کی دوسری جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ جن ایک جانور ہے اور انسان کا نکاح انسان کی جنس سے ہوتا ہے، جانور کی جنس سے نہیں ہوتا.
समझ गए? ये फिक्र इस्लामी है। दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप का कहना यह है क्योंकि जिन्नातों में जो हजरात जवाज के कायल है, भाई जिन से निकाह क्यों जायज है? इस वजह से कि इंसानों की तरह इसमें भी तवालुद तनासुल है, यानी इंसान जैसे माँ बाप से औलाद वजूद में आती है, शादी से मियां बीवी से औलाद वजूद में आती है, इसी तरह जिन्नों में भी तवालुद और तनासुल होता है। और बिल्किस का बाप तो इंसान था, उसकी मां जिन थी, और बाप से नस्ल साबित होता है, लिहाजा जिन्निया से निकाह साबित हो गया। ये जवाज वालों की दलील हुई। वो हजरात जो जिन एक मखलूक है, जो जानवर है, जब जानवर है तो इंसान जिन्स अफजल है और जानवर जिन्स मफजूल है, तो इंसान का निकाह जैसे बकरी से नहीं हो सकता, इंसान का निकाह जैसे भैंस से नहीं हो सकता, इंसान का निकाह जैसे गाय मादा से नहीं हो सकता, बस जिन भी एक जानवर है और जानवर मुअन्नस होने के बावजूद भी उसे निकाह नहीं हो सकता। खैर ये एक फिक्ही बात थी जो जिक्र कर दी। इसी से हजरत सुलेमान से बिल्किस के निकाह के जवाज का मसला भी साबित किया है, लेकिन ये एक इल्मी बात है, मोटी मोटी बातें मैंने जिक्र कर दी। तो हुदाहुद की 40 औलाद हुई और मजबूत और मुस्तहकम सल्तनत हुई। इनमें का एक बेटा सुरागिल था, उसकी बेटी बिल्किस बिन्त मलामन, ये तारीख और इतिहास के अंदर लिखा है, मलअमा बिन्त शैतान, ये भी तख्त सल्तनत की मालिक बनी। बहुत बड़ी हुकूमत और इक्तिदार उसका था। कहा? सबाए मारिफ सनआए यमन में। बहुत बड़ी मुस्तहकम सल्तनत की मालिक। हजरत सुलेमान का जमाना आया। अब समझो पति की बात। हजरत सुलेमान का जमाना आया तो हजरत सुलेमान ने दौरा किया तमाम अंबिया और रसूलों में। सुलेमान बादशाह भी है, नबी भी है। ये दाऊद के बेटे हैं, सुलेमान इब्न दाऊद। ये बड़े बड़े मौजिज़ात के मालिक थे। इंसानों के अलावा जानवरों पर भी हुकूमत थी, परिंदों पर भी हुकूमत थी, हवाओं पर भी हुकूमत थी, समंदरों की अंदर की मखलूकात पर भी हुकूमत करते थे। रहते थे जमीन पर और दरिया के अंदर की मखलूकात पर हुकूमत करते थे। दुनिया में और 3 बादशाह हुए हैं, जुल्करनैन, बुख्त नस्सर, लेकिन 2 काफिर हैं, फिरौन और बुख्त नस्सर, ये काफिर हैं। हजरत सुलेमान और जुल्करनैन ये मुसलमान हैं, लेकिन इन तीनों में 4 में नबी हजरत सुलेमान है, एक ही नबी गुजरे हैं। बाप भी दाऊद, जो आसमानी किताब ज़बूर जिस घर में उतरी थी, जिनको अलग माजिज़ात दिए थे। सुलेमान को अलग माजिज़ात, हुकूमत के साथ नबूवत भी थी, जमीनी मखलूकात की भी और बर्री और बाहरी और जव्वी, बर्री बाहरी और जव्वी, समंदर और अंदर के मखलूकात, खुश्की और ऊपर की मखलूकात और फिजाई मखलूकात, ये हजरत सुलेमान के ताबे थी। एक जैसा बादशाह गुजरा है। इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद नबी था। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा लश्कर जा रहा था, नमाज के लिए पानी की जरूरत पेश आई। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हाजिरी करते थे, खबरगिरी करते थे, हर मखलूक की, छोटे में छोटी मखलूक की भी खबरगिरी रखते थे। इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका हजरत मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की खबरगिरी रखते थे। ये पैगंबर की आदत शरीफा थी। कोई सहाबी नमाज में नहीं आया, हाजिरी करना मकसद नहीं था, हालात आका के सामने थे। पता चला बीमार हो गया, खबर निकालते थे। पता चला तकलीफ में है, तदबीर करते थे। ये पैगंबर की आदत शरीफा थी। रोजाना नमाजों में देख लेते थे, ये क्यों नहीं है। पता चला बीमार है तो खबरगिरी करते थे, इयादत करते थे। पता चला तकलीफ में है तो तदबीर करते थे तकलीफ दूर करने की। ठीक सहाबाए किराम में से
सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मसला भी यही था। रात को मदीना की गलियों में गश्त लगाते थे और फरमाते थे फारूक की तरफ, फारूक आज़म की तरफ ये मक़ौला मंसूब है और हकीकत भी है। वो ये फरमाते थे दरियाए फुरात पर अगर किसी भेड़िए ने किसी बकरी पर हमला कर लिया तो भी कयामत के दिन उमर का गरीबान खुदा पकड़ेगा और उमर से इस बारे में भी सवाल करेगा। ये सैयदना फारूक आज़म का मशहूर मक़ौला है। यानी मेरी हुकूमत के जमाने में और मेरी खिलाफत के दौर में एक भेड़िए की ये मजाल नहीं हो सकती है कि वो किसी बकरी पर जुल्म कर ले। ये दौर फारूकी था जो अजीम शान दौर था। अल्लाह के पैगंबर की आदत शरीफा, सहाबाई किराम की आदत शरीफा, अमन, अदल, इंसाफ, सलामती का एक अजीम किरदार पेश किया, जिस अमन और सुकून के दायरे में गैर मुस्लिम अक़वाम भी राहत और आराम की जिंदगी गुजारती थी। ये सैयदना फारूक आज़म का दौर था। पूरी कायनात की मखलूक़ातों में तो इंसान तो दूर की बात, एक जानवर भी सुकून की जिंदगी गुजारता था। जब हाकिम और रईयत का राई इस किस्म का होता है तो उसके हुकूमत और सल्तनत के साये चले कायनात अमन और सलामती और सुकून और मोहब्बत के सांस लेती है। एक मर्तबा जरूरत पेश आ गई। कुरान का अंदाज़ बयान बड़ा प्यारा है। वो तफक्कदत तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद। हाजिरी हुई, परिंदों की हाजिरी शुरू हुई। अब परिंदे, इंसान, जिन्नात, जानवर, फिर पालतू जानवर, फिर दरियाई मखलूकात, जिन्नातों की भी हाजिरी और दरिंदों की भी हाजिरी। तो हुदहुद नाम का एक पक्षी नजर नहीं आया। कुरान क्या कहता है? वो तफक्कदत तैर। अजीब बात लिखी है, तफक्कदू आमालहुम। हजरत साहबाए किराम की आदत शरीफा थी, जब आरज़ुएं पूरी नहीं होती थी तदब्बरू आमालहुम, तो अपने अमाल को देखते थे कि क्या कसूर है जिसकी वजह से मेरा काम नहीं हो रहा है। ये साहबा के सिफात थे। क्या कहा? मा लिय ला अरल हुदहुद। मेरी किसी कोताही या कमी की वजह से एक ऐसी मखलूक जो कमजोर है और जिसकी नस्ल भी बहुत थोड़ी बाकी रह चुकी है, वो मेरी नजर में क्यों नहीं आती? बड़ा प्यारा जवाब, बड़ा प्यारा सवाल। मा लिय ला अरल हुदहुद। मैं नहीं देख पाता हूं, ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है, मैं देख नहीं पाता हूं। हो सकता है मजमे में हो। एक हकीर और जलील मखलूक है, एक कमजोर मखलूक है। हुदहुद एक पक्षी है, घोले की तरह, उसकी लंबी चोंच होती है, सर के ऊपर एक लंबी चोंच होती है। इसकी नस्ल आज भी बहुत कम है, लाखों में कोई एक। उसको कुदरत ने ये तासीर दी है कि चोंच मार करके पानी की गहराई बता देता है, पानी कितने ऊंडाई में है। जैसे आजकल साइंस के जरिए से लोग पानी देखते हैं और तजर्बात में गलत भी साबित होता है। एक पक्षी को खुदा ने यह ताकत दी है कि वो पता लगा लेता है कि पानी ऊंचाई में है या ऊंडाई में है। जब हजरत सुलेमान का तख्त चलता था, लश्कर चलता था, तो ये परिंदे भी चला करते थे और पानी की जरूरत पेश आई, हुक्म दे देते थे, वो चोंच मारता था, खोद देते थे, पानी निकल जाता था। और ये सब कुरान में है, अफसाना नहीं है। अजीब किस्म की हुकूमत के मालिक फरमाया, जब हुकूमत में रईयत और प्रजा, हाकिम और राई की विरोध बन जाए, घर के बड़े जब घर के छोटे उनके बागी बन जाए, उस वक्त ये सोचना चाहिए तफक्कदू आमालहुम, गौर करो मुझसे कोई कुसूर हो रहा है। ये वीक पॉइंट तलाश करने का बेहतरीन रास्ता। मैंने अल्लाह की बगावत में कोई काम किया है जिसकी वजह से बीवी मुखालिफ हुई, औलाद मुखालिफ हुई, खानदान मुखालिफ हुआ, जरूर मेरी कोई तकसीर मालिक के साथ हुई।
यही हजरत सुलेमान फरमाते हैं कि मुझे नजर नहीं आता, हो सकता है मुझसे कोई तकसीर हुई हो, कोताही हुई हो, मैं अपने रब ताला से माफी मांगता हूं। थोड़ी ही देर में आ गया और आकर के कहा, इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शै व लहा अर्शुन अज़ीम। ए बादशाह सलामत, मेरी गैरहाजिरी का उज़र ये है, आपने तो कहा था अगर माकूल उज़र नहीं बयान करेगी सख्त तरीन सजा दूंगा, और हो सकता है सजा भी कर डालू। लअदिबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। सख्त तरीन सजा, पूरे के पूरे पीठ उखेड़ करके फेंक दूंगा, बाजू जिससे उड़ता है उड़ा कर उड़ा दूंगा, तफसीर में लिखा है, जमा कर दूंगा। या गैर हाजिरी पर कोई माकूल उज़र पेश कर दे। अब माकूल उज़र पेश करती है, शाह सलामत आप नबी हैं, नबी ज़ादे हैं, आपकी हुकूमत जहां तक है, इसी हुकूमत के अंदर एक औरत होकर के गैरुल्लाह की पूजा पाठ करती है। इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शै व लहा अर्शुन अज़ीम अन्नहा तअबुदु मिन दूनिल्लाह। पहले तो उसके हालात बयान किए और फिर उसकी मजहबी हालात भी बयान किए कि वो गैरुल्लाह की परस्तिश करती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हालात का जायजा लेने के लिए खत लिखा, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैहि वातूनी मुस्लिमीन। खाली 2 लकीरें लिखी, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैहि वातूनी मुस्लिमीन। ये खत सुलेमान की तरफ से है, ये खत बिस्मिल्लाह पढ़ करके लिखता हूं जो रहमान और रहीम है। तुम लोग मेरे मुकाबले में सरकशी करना छोड़ दो और सब मेरे ताबेदार बनकर आ जाओ। ये खत पहुंचा है सबाए माआरिफ की मलिका बिल्किस के पास, बड़ी होशियार थी, 40 घर के खानदान के लोग बादशाह रहे हैं। आजकल की तरह हुकूमत हासिल नहीं की थी, हकीकत में हुकूमत हासिल थी। अल्लाह हिफाजत फरमाए मौजूदा हालात में। बहुत बड़ी सल्तनत, अक्लमंद बहुत थी। दरबार बुलाया, दरबार, या अय्युहल मलऊ इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैहि वातूनी मुस्लिमीन। ए दरबारियों, एक खत आया है, इसका ये मजमून है, मा कुन्तु कातिअतन अमरा हत्ता तशहदून। तुम्हें मालूम है कि मैं पूरी की पूरी सल्तनत के अंदर हुक्म चलाने वाली बादशाह रानी नहीं हूं, बल्कि मैं तुमसे हर मोड़ पर मशवरा लेती हूं और मशवरे के बाद मेरा जजमेंट डिक्लेयर करती हूं। तो मुझे जजमेंट के लिए आपको तलब किया है। दरबारी लोग, बादशाह के खाने पीने वाले, बादशाह के दस्तरखान के टुकड़े चुनने वाले, इन्होंने तो ऐलान कह दिया, आप ऑर्डर कर दो, हम जंग के लिए तैयार हैं, जैसे रशिया ने यूक्रेन को खत्म कर रहा है। घमंड है, पावर है हथियार का, घमंड है, पावर है ताकत का। मसल्स पावर और मनी पावर जब इंसान में हद एतदाल से आगे बढ़ जाए, हर मोड़ पर हर इंसान के लिए किसी भी फील्ड में उसके एक माहिर, तजर्बाकार, दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार रहबर की जरूरत। हर मोड़ में दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह हो, रहबर की जरूरत। बगैर रहबर के किसी भी फील्ड में वो इंसान अपने मन की आरज़ुएं पूरी करने के लिए अपनी अक्ल फिरासत की बुनियाद पर किए हुए फैसलों में और वाणी विलास में और भड़काऊ भाषण में वो कर डालता है कि नस्लें उसका खुमियाजा भुगतती है, जैसे अभी हुआ। मौजूदा हालात में एक भड़काऊ भाषण, एक लफ्ज उठाता है गैर कि कोई हिजाब पहनने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। बाजी कहां से कहां, इंसानों के हाथ कहां से कहां तब्दील हो गए। सोचना चाहिए, हर मोड़ में, जिंदगी के हर सांस में, हर फील्ड में
एक रहबर उस्ताद होना चाहिए, वरना वो इंसान गुमराह हो जाएगा। इल्म की लाइन में सैयद अबुल आला मौदूदी को देखो, इल्म की लाइन में इमाम अहमद रजा बरेली को देखो, इल्म की लाइन में इमाम खुमैनी को देखिए। ये बड़ी बड़ी शख्सियत हैं जिनकी दर्जनों नहीं कई दर्जनों कई सौ किताबें दुनिया में लाई, कुरान की तफसीर से लेकर कायदा बगदादिया तक, लेकिन रहबर नहीं, नफ्ज सनास इंसान के हाथ में हाथ नहीं दिया तो कायनात की हिदायत दुनिया ही में बदल गई। हर मैदान में जरूरत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत के जाने पर मशवरा हुआ। दरबारियों ने कहा ऑर्डर कर दो, अभी ईद से ईद बजा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, खाली ऑर्डर के मोहताज हैं हम, आपके ऑर्डर दे दो। लेकिन ये बहुत होशियार थी, जिसकी नस्ल में 40वां ये बादशाह था, होशियार थे। इन्होंने कहा इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिय्या फनाज़िरतुन बिमा यरजिउल मुरसलून। चलो दरबारियों, तुम्हारा जवाब सुन लियो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मैं मेरी तदबीर करती हूं, मैं हदिया भेज करके सुलेमान का इम्तिहान करूंगी। नबी है, उसकी हिदायत कबूल करनी पड़ेगी, और बादशाह है तो हदियों के कुत्ते और मोहताज होते हैं। अगर बादशाह है या नबी, दोनों में फर्क करने के लिए माल दिया, माल सोने की ईंटें, हीरे जवाहिरात अजीब, और एक बहुत बड़ा लश्कर भेजा हजरत सुलेमान की खिदमत में। वो तो नबी थे, साहिब वहय इंसान थे। 30 मील लंबी सोने की सड़क बनाई हजरत सुलेमान ने। 4000 दाहिनी तरफ उलमा के बैठने की सोने की कुर्सियां, 4000 बाईं तरफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जी असर और वकार शख्सियत की कुर्सियां लगाई। 2 तरफ परिंदे और अजीब अजीब किस्म के जानवर और जिन्नातों के बच्चे दरिये में से उठाकर खड़े कर दिए, और जानवरों को मुकल्लफ किया कि सोने की सड़क पर हगना मूतने का है। वो लोग आए, दरबार सज गया हजरत सुलेमान का, हीरे जवाहिरात मोतियां सोना, ये सब कुरान की तफसीर में है, खाली वार्ता नहीं हकीकत है। वो आए, देखा तो कहीं इधर उधर वो अपना वो सोने की ईंटें वही डाल दी रास्ते में। बहुत मरऊब और मुतासिर हुए, और वहां जाकर के ये सारा माजरा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पेश किया। इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़र्यतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला वकज़ालिक यफ़अलून। अब सबक की बात, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कासिद, जब इनके कासिद हजरत सुलेमान के पास पहुंचे, मलिका के पास पहुंचे, बिल्किस के पास हालात बयान किए, कहा असलमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत सुलेमान ने फरमाया अगर इस्लाम ले आएगे तो तू भी सलामत रहेगी, तेरा हुकूमत भी सलामत रहेगी, और अगर इस्लाम नहीं ले आएगी न तू सलामत रहेगी न तेरी हुकूमत सलामत रहेगी। उसने फौरन कारगुजारी सुनकर के कह दिया असलमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुरान गवाही देता है, और मुसलमान और ताबेदार हो गई। हजरत सुलेमान ने 2 काम किए। अब कौम समा की मलिका उमाइदीन सल्तनत के साथ सबाए यमन महारिब से सफर करके हजरत सुलेमान की खिदमत में हाजिर होती है, लेकिन हाजिरी से पहले सुलेमान ने 2 एहतिमाम किए अलैहिस्सलाम। वो तखत जो पूरी देश की मालियत थी, जिस पर फख्र किया जाता था, हजरत सुलेमान ने, चूंकि जिन्नात पर हुकूमत हजरत सुलेमान की थी, महफूज कमरे से उठा करके हजरत सुलेमान ने उसकी आमद से पहले अपने पास बुलवा लिया। एक जिन्नातों की जमात से कहा अय्युतकुम यातीनी बिअर्शिहा कबला यातूनी मुस्लिमीन। वो लोग मुसलमान बनकर आ तो रहे हैं, लेकिन आने से पहले कौन इनका अर्श ले आएगा। एक जिन्नात ने कहा अना आती कभी कबल अयरतद अना आती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिक। आप सुबह में हुकूमत के निजाम को देखने के लिए बैठते थे रईयत में, यह मजलिस पूरी हो जा रहे उससे पहले आ जाएगा। क्या तेरी जरूरत नहीं है। दूसरे ने कहा अना आती कभी कबल अयरतद इलैका तरफुक। बादशाह
आप आंख बंद करे खोलो इतने में वो आ जाएगा। ये ताकत जिन्नात की ताकत है जो अल्लाह ने दी और इतने में वो लाया भी। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी अक्ल और जहानत का इम्तिहान किया तो उसको कम अकल पाया और उसका बयान कुरान में है। उसको छोड़कर इन्नल मुलूक इदा दखलू करियतन अफसदूहा वजअलू अइज्जत अहलिहा अदिल्ला, इसी को बयान करने के लिए मैंने कुरान की हिकायत बयान की। एक होता है बादशाह और एक होता है नबी। नबी खूनरेज नहीं होता, नबी बाइज्जत लोगों को जलील नहीं करता, नबी ताकतवरों की ताकत को बहाल करता है, कमजोरों को ताकतवर बनाता है। नबी जालिमों को फलने नहीं देता, मजलूमों को जुल्म का बदला दिलवाता है। क्या यूक्रेन और रूस में ये हो रहा है? एक आपको सोचने का सबक दिया जा रहा है। किन बुनियादों पर जुल्म ढाया जा रहा है? अजीब बुनियाद। ये वो हिस्सा जो इसमें शामिल रसिया में और उससे अलग होकर के एक मुल्क बना, इस मुल्क को वापस ताकत पैदा हो जाने की बुनियाद पर उसके सारे इख्तियारात को खत्म करके उसको गुलाम बना देना। कोई एक मिसाल ऐसी पेश की जाए जहां इस्लाम और इस्लामी नुक्ता नजर ने किसी आजाद को गुलाम बनाया हो? हाँ, दर्जनों वाकयात मिलेंगे जहां इस्लाम ने गुलामों को आजाद करके, गुलामों को गुलामी से आजाद करके आजाद कर दिया है। जहां इस्लाम ने कमजोरों को ताकतवर बनाया है, जहां इस्लाम ने मजलूमों को इंसाफ दे करके हक के इंसानियत अता किया है। बहुत खतरनाक जंग है जो चल रही है। अजीम अजीम बर्क रफ्तार इमारतें खंडरात में बदल गई है। वो कौम जिनके हसीन ख्वाबात कयामत तक के थे, वो नस्ल इंसानी जिनका सुकून जहां की टेक्नोलॉजी और साइंस को सीखने के लिए लोग जाया करते थे हजारों की तादाद में, जो अजीब किस्म का चमकता दमकता मुल्क बनाया था, आज वो खंडरात की सूरत में बदल गया। और बमबारी की वजह से आने वाले कई दहाइयों तक वो नस्ल इंसानी अपाहज और माजूर पैदा हो। ये दुनिया के बादशाहों का और अंबिया के इंसाफ और हुकूमत और सल्तनत में वाज़ेह फर्क है। दुआ करनी चाहिए। हालात बहुत खतरनाक चल रहे हैं। सबसे बड़ा अलमिया यह है मुसलमानों का, चाहे सियासी मैदान हो, चाहे मजहबी मैदान हो, चाहे तालीमी मैदान हो, अपना कोई न कोई रहबर को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ा खतरा जिसकी तरफ निशानदेही की जा रही है वो ये है, किसी भी लाइन से खुदा ने इंसान को इज्जत दी हो, उसका रहबर होना चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इसलिए कि इंसान के अकल और इंसान का इल्म उसके हिदायत के मुकाबले में गुमराही की तरफ ज्यादा दायी हो सकता है। इंसान का इक्तदार और इंसान का मनी पावर और इंसान का मसल से पावर उसके इंसाफ के मुकाबले में जुल्म की तरफ ज्यादा दायी हो सकता है। इसलिए कि नफ्स तो किसी से गया ही नहीं, और वो तो बड़ा खतरनाक शैतान से भी बड़ा मक्कार है, इसके बारे में पनाह मांगी गई है। मौजूदा हालात में दुआओं की बहुत जरूरत है। यह न सोचा जाए कि रसिया रूस और यूक्रेन के मसले में हमको क्या लेना देना, नहीं। हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के पेश नजर या आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर ले और दुनिया के अंदर कोई भी देश अमन सलामती के साथ बाकी न रहे। हर एक इंतजार में एक दूसरे को दाव में लेने के लिए घोड़ा दबाए हुए हैं। आप मुताला करें, स्टडी करें, हर मुल्क दूसरे मुल्क पर घोड़ा दबाए हुए हैं, कब मौका मिले और बटन दबाए। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के लिए आपस में खाना जंगियों के सिलसिले की एक तदाबीर और सोची समझी स्कीमें सबने तैयार कर रखी है। इन हालात में बहुत सख्त जरूरत है इस बात की कि हम अपने मुल्क में अमन और आस्थे, शांति, सलामती, मोहब्बत और प्यार के साथ रहें, अपनों के साथ भी और बिरादराने वतन के साथ भी। खुशियों में आपे से बाहर न हो जाएं,
गमियों में अपने दिल को थामे, बहुत जरूरत है। अगर फिर भी हमारा वलन नहीं बदला और हमने अक्कड़ वलन रखा, हो सकता है हम अपना भी नुकसान करें, कौम का भी नुकसान करें, समाज का भी नुकसान हो। अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए। चंद जरूरी ऐलानात हैं। मदरसा तालीमुल कुरान हरिद्वार से चंदे के सिलसिले में मौलाना तशरीफ लाए हैं। 17 लाख का सालाना खर्च है। ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से मदरसे का ताआवुन करते जाएं। 17 तारीख बुधवार जुमेरात के दिन सुबह 8:30 बजे मदरसा फैजुल कुरान कुव्वतुल ईमान इसका सालाना जलसा है। 19 अजीज तलबा कुरान करीम के हाफिज हो रहे हैं। 27वां सालाना जलसा है। 19 अजीज तलबा कुरान के हाफिज होते हैं। जुमेरात के दिन 8:30 बजे मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब मौलाना दाऊद पीर साहब मदरसा चलाते हैं केशोद बाईपास रोड पर। उसका सालाना जलसा है। इसमें तमाम लोगों को शिरकत की दावत दी जाती है। 16/3/22 बुध के दिन इशा की नमाज के बाद घाची जमात खाने में मुफ्ती उसामा का बयान रखा गया है। तीसरा ऐलान ये है कि मदरसा तैयबा मस्जिद के अंदर लड़कों का मदरसा चलता है, जिसमें 145 तलबा तालीम हासिल करते हैं। 3 बच्चे हाफिज हुए हैं। इनकी दस्तारबंदी है। वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल जाकर के ओवर टाइम में यहाँ पढ़ते हैं। इसमें से 3 बच्चे हाफिज हुए। इनकी दस्तारबंदी शनिवार के दिन इशा की नमाज के बाद मस्जिद तैयबा के पास हाजी सुलेमान पटेल की जगह है, उसमें रखा गया है जहाँ कुर्बानी होती थी। शनिवार के दिन इशा की नमाज के बाद फौरन रखा गया है। इसमें बच्चों के प्रोग्राम भी हैं और 3 तलबा कुरान करीम के हाफिज हो रहे हैं। इस जलसे के अंदर भी तमाम को शिरकत की उमूमी दावत दी जाती। एक ऐलान यह है, रविवार के दिन 1:45 बजे हाजी सुलेमान और उनके भाई हसन, इन सब भाइयों का जो नारियली का बगीचा है, यहाँ 2 साल से तकरीबन लड़कियों का मदरसा चलता रहा, जिसमें 350 लड़कियां शहर की पढ़ती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल में 13 आलिमा फारिग हुई थी। अभी 5 आलिमा फारिग हो रही है और मोमिना कोर्स से 10, कुल 15 लड़कियां फारिग हो रही है। ये सिर्फ औरतों में प्रोग्राम है। लड़कियों में ये होता है कि मर्दों में तो इमामा बांधते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआद बिन जबल और अबू मूसा अशअरी को यमन भेजा था। ये सुन्नत है। तो इस तरह आपने किया था। यहां सिर्फ खवातीन में प्रोग्राम है, औरतों में। खत्म बुखारी शरीफ 1:45 बजे शुरू होगी, 2:15-2:30 बजे तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद औरतों में प्रोग्राम होगा। ये सिर्फ खवातीन के लिए है, औरतों के लिए। 350 बच्चियां हमारी जो हैं यहाँ शौहर ही की तालीम हासिल करती है। पूरा आलिमा कोर्स पढ़ाया जाता है। 18 मुअल्लिमात हैं, पढ़ाने वाली उस्तादनियां हैं। 2 मर्द उस्ताद हैं जो हम बुखारी और तिरमिज़ी पढ़ाते हैं। बाकी तमाम किताबें औरतें पढ़ाती हैं। ये 5 साला कोर्स है और 5 साला कोर्स में ये 7वां साल है। और 7वें साल में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की 13 और इस साल की 15 लड़कियां आलिमा कोर्स पूरा कर रही है। इसमें अपनी अपनी खवातीन को भेजे। शनिचर के दिन ईशा के बाद लड़कों का जलसा है लड़कों में, और इतवार के दिन जोहर की नमाज के बाद 1:45 बजे से मस्तूरात में है। इन तमाम प्रोग्राम में अपने आप को शरीक करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी मस्जिदों से भी, गांव से भी, जगह जगह मकातिब से कुरान के हाफिज फारिग हो रहे हैं। ये मांगरोल पर अल्लाह ताला का जबरदस्त इनाम और एहसान है। एक जबरदस्त एहसान। पहले दारुल उलूमों में जाया करते थे, अब मस्जिदों से उलमा की तादाद हो गई। उलमाए किराम मेहनत और कोशिश करके इन पर मेहनत करते हैं, हाफिज हो रहे जगह जगह से। एक बहुत ही दर्दनाक दुख की खबर भी दे देते हैं। खादिमुल कुरान वल मसाजिद हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब दामद बरकातहुम आलिया अक्कलकुवा निंदुरबार में एक जबरदस्त यूनिवर्सिटी और बहुत बड़ी कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और कई तरह की जो हैं चीजें वहां स्कूल, मदरसे, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज कायम किए हैं। इनके बड़े भाई हाफिज इसहाक साहब आज जुमे के दिन
अल्लाह की रहमत के आगोश में चले गए। एक जबरदस्त मुल्क और मिल्लत में इस खानदान और फैमिली की खिदमत रही है। नमाज से फरागत के बाद उनके लिए इसाले सवाब भी होगा। अल्लाह ताला मरहूम की और कुल मरहूमिन की करवट करवट मगफिरत फरमाए, सबकी कब्रों को नूर से भर दे, सबकी रूहों को इल्लिगिन में दाखिल फरमाए, हम सब का ईमान पर हुस्न खातिमा नसीब फरमाए। मौजूदा नताइज जो हुकूमती सतह पर भारत में आए हैं, इस पर इंशाअल्लाहुल अजीज किसी और मौके पर जरूर इबरत और नसीहत की बातें पेश की जाएगी, ताकि मुसलमानों को मुस्तकबिल में अपना लाइए अमल बनाने के लिए मदद मिले। यहां मिंबर और मेहराब से जो बातें बयान की जाती है, सियासी लेवल पर नहीं, राजकीय बाबत नहीं, बदलते हुए मुल्क के हालात में और इंसानों के नजरियात और सोच में इस मुल्क में अमन आश्ती कैसे बाकी रहे, घबराना भी नहीं चाहिए। नताइज कुछ से कुछ हो, लेकिन अपनी इत्तेहादी ताकत और यूनियन को नहीं तोड़ना चाहिए। लोग मामूली बहाव में और उछलते हुए सूरज के हम परस्तार नहीं हैं। एक नुक्ता दिमाग में देखो, हर उछलता हुआ सूरज ये तो उन लोगों का अकीदा है जितने चमत्कार इतने परस्तार, ये हमारा काम नहीं। अक्ल बसीरत और दूरअंदेशी इख्तियार करो। राजकीय बात नहीं है, देश की सल्तनत पर बैठे हुए से लेकर अदलिया से लेकर इस मुल्क के भारत में एक सोच के मालिक की जबरदस्त मजबूत मुस्तहकम सल्तनत पिछले 70-75 साल की मेहनत के बाद मंजर आम पर आई। चाहे वो जजों का निजाम हो, चाहे वो IPS अधिकारियों का निजाम हो, पूरा मुल्क अगर कंट्रोल में है तो एक मजहबी नुक्ता नजर के लोगों के हाथ में। इसीलिए चमकते हुए सूरज की अगर परस्ती शुरू कर दी और कौम में तफरका और इख्तलाफ पैदा कर दिए तो बजाय सुकून के फसाद पैदा होगा। और अभी जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, शायद ये वातावरण भी नसीब न हो। सोचो, इक़्तिदार के हवस कोई हैसियत नहीं रखती है, कल कब्र की मिट्टी लुकमा बना लेने वाली है। पाट बांध देने के बाद अंदर के हालात की जिंदगी का हिसाब शुरू हो जाएगा। इस्लामी इत्तेहाद को किसी भी कीमत में किसी भी मुसलमान को फरोख्त नहीं करना है, यूनियन को बाकी रखना है, इत्तेहाद को बाकी रखना है, चाहे मजहबी मामलात में हो, चाहे समाजी मामलात में हो, चाहे सियासी मसाइल में हो। इक़्तिदार मिले न मिले, हक मिले न मिले, लेकिन इस्लामी इत्तेहाद पारा नहीं होना चाहिए। इसकी कसमें खा लेनी चाहिए। और अगर कोई कसम नहीं खा सकता है तो अपने दिल से निफाक का रोग दूर करके उसकी फौरी इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मोहतरम हज़रात, मौजूदा मुल्क के 4 सूबों के नताइज पर अभी रिसर्च जो हो रहा है, उससे आइंदा मुसलमानों के लाइया अमल क्या अपनाना चाहिए, इस सिलसिले में आइंदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका लुब्बे लुबाब पेश किया जाएगा। लेकिन फौरी तौर पर यह बात जहन में रखनी चाहिए, देश में जनादेश जिस बहुमती समाज का है, इनके साथ उख़ुव्वत, भाईचारा, हुस्न अखलाक, अमन व आश्ती और मोहब्बत और सुलूक के साथ रह कर के इस मुल्क के अंदर अमन व सलामती को बहाल करने की हर मुसलमान को फर्ज ऐन के दर्जे में कोशिश करनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में बहुमती में रहने वाले हिंदू समाज के साथ उख़ुव्वत, भाईचारगी, कौमी यकजहती और हम सबसे पहले हिंदुस्तानी एक कौम होने की हैसियत से अमन सलामती, उख़ुव्वत, भाईचारगी और प्यार और मोहब्बत के साथ रहना हर मुसलमान के लिए यह फर्ज ऐन का दर्जा रखता है। अभी इस पर अमल किया जाए, आइंदा नताइज पर गहरी गौर व फिक्र के बाद लाइया अमल सियासी मैदान में क्या अपनाया जाए, इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में उसकी हिदायतें पेश की जाएगी। ये दोनों मदरसों के जलसे के ऐलानात हुए। साथियों से गुजारिश है, साल भर ये उलमा हमसे जो है माली ताउन हासिल करके
उम्मत के अंदर हीरे जवाहिरात पैदा कर रहे हैं, अपना अपना वक्त फारिग करके तमाम ही मदरसों के तमाम जलसों के अंदर ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। घंटे 2 घंटे 3 घंटे के मसले होते हैं, लेकिन सालाना तालीमी रिकॉर्ड पेश करने में उनके हौसले बुलंद होते हैं। जब हमें इल्म और असबाब इल्म की कद्र मंजिलत रखेंगे, इंशाअल्लाह हमारी नस्लों में भी सुलहा और उलमा खुदा पैदा फरमाएंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाल अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या राहिमल मसाकीन व या दल कुव्वतिल मतीन। ऐ अल्लाह, तमाम फैसलों में सबसे बड़ा फैसला आपका है। आप ही इज्जत और जिल्लत के मालिक हैं, आप ही जिंदगी और मौत के मालिक हैं। आप जिसके हाथ चाहते हैं इक्तिदार लगा देते हैं। कुरान का बयान करदा वाकया, एक खानदान की 40 औलाद को तूने ही सल्तनत दी, बादशाहत दी, और 40 में से एक भी बादशाह बने बगैर नहीं मरा। तो वो अल्लाह है, इतनी बड़ी ताकत का मालिक है। 750 साल इस्लामी राज इस देश पर रहा और इस्लाम ही इस्लाम नजर आता था। ऐ अल्लाह, कल हमारा हाथ ऊपर था, आज हम दस्ते निगर बन चुके हैं। रब्बा, कहीं न कहीं हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचना ही पड़ता है, वीक पॉइंट तलाश करना ही पड़ता है। जो कौम हजीमत के बाद भी अपने वीक पॉइंट पर नजर न रखे, इनका मुस्तकबिल तारीक रहता है। ऐ अल्लाह, आपका फैसला आपकी तरफ से होता है। कुलूब तो आपके कब्जे कुदरत में है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। फैसला तेरा चलता है। हमारे अमल बहुत बिगड़ गए, इतने बुरे अमाल हो गए कि तेरे सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हमारा जवान रात को गैर मुस्लिम मोहल्लों में जाकर के 11-12 बजे शराब तलाश करने जाता है। ये हमारा हाल है। तेरे दरबार में तुझे कहा जाता है और कहते हैं कि वो यहाँ क्यों आते हैं, हम इनके साथ ये क्यों न करें। ए मेरे परवरदिगार, रात को 11-12 बजे जब मेरा कलमा शरीफ भाई गैर मुस्लिम के पास जाकर के शराब के अड्डे से शराब तलाश करने जाता हूँ, ए काली काली रात के बेहतर मालिक अल्लाह, क्या ये काम हमारे करने के थे? मेरे परवरदिगार, किस मुंह से हुकूमत का हम नशा देख रहे हैं, किस मुंह से हम सल्तनत की ख्वाब देख रहे हैं। ऐ अल्लाह, मेरे परवरदिगार, कसूर हमारा ही, हमारी बदअमली आज हमें जिल्लती के दहाड़ों पर ले जाकर के पहुंचा रही है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुल्क आपका है, बंदे आपके हैं। ऐ अल्लाह, सारी चीजें आपके इख्तियार में है। ऐ हमारे परवरदिगार, फिर भी हम अमन सलामती का सवाल करते हैं, मोहब्बत और भाईचारे का सवाल करते हैं। बड़ा महीना है, इसमें दुआएं कबूल होती है और हर मुसलमान से हिदायत की जाती है। 24 घंटे में एक मरतबा, 24 घंटे में एक मरतबा, 100 मरतबा अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील की पूरी सूरत पढ़ ले। मर्द भी पढ़े, औरतें भी पढ़े, बच्चे भी पढ़े। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जालिमीन के जुल्म तसल्लुत से हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह, हम आहद करते हैं तेरे कुरान के बयान करदा नुस्खे पर अमल करेंगे। इस मुल्क में इस्लाम की, मुसलमानों की, शाआइर इस्लाम की हिफाजत फरमा। हमें इत्तिहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमा। मदारिस मसाजिद की आबियारी फरमा। अल्लाह, दावत की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह, नतीजा जो सामने आ रहा है वही मरकज पर हमला करके, अय अल्लाह, हमारा जो रूह था, हमारा जो दिल था, हमारा जो कल्ब था, अय अल्लाह, एक हमारा दावत के मुबारक काम में जो मुरझाहट पैदा हुई, अल्लाह, बरसरे इक्तिदार आने वाली कौम आपस में ये पार्टनर बन रही है। वो चेहरे नजर आ रहे हैं जो कोई दावत के बरकत पर हमला करके भी अल्लाह जिसका चेहरा नुमाया हो रहा है, अल्लाह, और इस तरह के मजालिम ढा करके नुमाया चेहरे खुल करके सामने आ रहे हैं। कसूर हमारा है अल्लाह, हम इक्तिदार की हवस में इस्लामी इत्तिहाद को पारा पारा न कर दे। अल्लाह, हमारी जान माल इज्जत आबरू की इससे हिफाजत फरमा। खादिमुल कुरान के भाई तेरी जवार रहमत में चले गए,
اور جتنے بھی مرحومین مسلمین سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، سب کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دے۔ اے اللہ اسلام مسلمان شعائر کی حفاظت فرما، اس ملک میں امن و آشتی نصیب فرما، شر و فساد سے حفاظت فرما، مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل پیارے آقا کے احسانات کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔